Hello everyone, I'm Rajni Jain from Seriously Everything. Today I have come up with my another video. In this video we shall learn about a part of speech that is noun. This topic is very simple. In this video I will explain everything in detail. And I am very much sure that after watching this video you will not have a single doubt. So let's see what is given in this video. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट नाउन इज नाउन क्या होता है इसे समझते हैं. इफ़ आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो नाउन का मतलब है नाम, कोई भी नाम. ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरीथिंग हैज़ गॉट अ नेम. आपका भी कोई नाम होगा. योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड्स, दे ऑल हैव गॉट अ नेम एंड दे ऑल आर पर्सन. और तो और वो जगह जहाँ आप रहते हैं हम उसे हाउस कहते हैं, जहाँ आप पढ़ने जाते हो उसे हम स्कूल कहते हैं, और जहाँ आप खेलते हो उसे हम प्लेग्राउंड कहते हैं. तो हाउस, स्कूल, प्लेग्राउंड, दे ऑल आर द नेम ऑफ प्लेसेस. नाउ यू जस्ट सी थिंग्स अराउंड यू. सबका कोई ना कोई नाम है. आप अपनी नज़र उठाकर देखोगे तो आपके सामने टेलीविज़न, टेबल, चेयर, मोबाइल फ़ोन, वॉल, बेड और न जाने कितनी सारी चीज़ें होंगी और सभी का एक नाम दिया गया है. सिमिलरली इन दिस वीडियो नाउ यू विल सी दैट देयर इज़ अ पिक्चर and he is Dr. APJ Abdul Kalam, a great leader. Here he is a person. Then we have a picture of a place, and this is Taj Mahal. This is a historical building. Then we can see the picture of many things. Here we can see a purse, a calculator, pencil, a lamp and book जिन्हें हमने कोई नाम दिया है. Here is an animal and he is lion. और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं और उन्हें भी एक नाम दिया गया है. जैसे विजडम मीन्स बुद्धि, एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, एंड ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. विजडम और ब्रेवरी ये दोनों की दोनों क्वालिटीज़ हैं, जबकि एंगर एक फीलिंग है. So here we can understand that noun is a word that represents a person, place, thing और idea. तो noun सिर्फ एक नाम है जो किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस यानी कि जगह का भी हो सकता है, किसी वस्तु का और किसी विचार का भी हो सकता है. In this slide, I have divided noun in two categories, abstract noun and concrete noun. Abstract noun is intangible. Intangible is something which cannot be touched, जिसे हम छू नहीं सकते हैं. And concrete noun is tangible. It means it can be touched. Here, concrete noun has been divided into four parts: proper noun, common noun, collective noun, and material noun. Now, we shall discuss all these nouns in detail further in this video. But here we can notice that common noun has further been divided into two parts: countable common noun and uncountable common noun. Let's try to understand the concept of proper noun. A proper noun is a name of a particular person, place, organization, or thing. Proper nouns begin with a capital letter. For example, Margaret, London, and United States. It means प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का, प्लेस का, संस्था का या किसी भी वस्तु का एक पर्टिकुलर नाम होता है और इसकी पहचान यह होती है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है. वैसे आपका भी कोई ना कोई तो नाम होगा ही, तो वह नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा. फर्दर आई हैव गिवन यू सम मोर एग्जाम्पल्स. Delhi is the capital of India. Delhi is a proper noun and it is the particular name of a city. Similarly, India, this is a particular name of a country. Then Ganges is a particular name of a river. Dr. APJ Abdul Kalam is a name of a particular person. Himalayas is a name of a particular mountain series. Similarly, again India. Agra
is a particular name of a town, and Taj, it means Taj Mahal, which is a particular name of a historical building. So here you can notice that all the proper nouns begin with a capital letter. Here we need to pay attention. Always remember, if we have a group of two or more than two words in proper noun, we use capital letter for each word. इसका मतलब कि अगर प्रॉपर नाउन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड हैं तो हम हर वर्ड के फर्स्ट लेटर के लिए कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस में एस भी कैपिटल रहेगा, चंद्र का सी भी कैपिटल रहेगा और बोस का बी भी कैपिटल होगा। सिमिलरली इंडियन ओशियन, ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके लिए इंडियन का आई भी और ओशियन का ओ भी कैपिटल होगा। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बे का बी और बंगाल का भी बी, यानी सभी के सभी वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स यहाँ पर कैपिटल होंगे। Now it's your activity time. You have to pick out a proper noun from the given sentences. Agatha Christie wrote many books. Cleopatra is the cutest kitten ever. I have craving for Oreos. Let's go to San Francisco. Mr. Max seems to understand what students need. I can see Jupiter tonight. He never goes anywhere without Sarah. There are many important documents at the Library of Congress. Now see what a common noun is. A common noun is a word that does not refer to any particular person, place or a thing. A common noun एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, जैसा कि प्रॉपर नाउन के केस में हो रहा था। इट गिव्स अ कॉमन नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ये सेम क्लास और काइंड के पर्सन के लिए, उस जगह के लिए या फिर वस्तु के लिए एक कॉमन नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल, सो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू नाउ। Audi is a car. So Audi here is a name of a company. This is a particular name of a company, but here we are using a common noun that is car. तो ऑडी की जगह पर अगर यहाँ पर सेंट्रो होता या वेगनार होता या इनोवा होता या i10 होता, कोई भी गाड़ी होती जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उन सभी फोर व्हीलर्स को हम यहाँ कार कहते हैं। Then in second example, England is a country. So here it could have been any country. यहाँ कोई भी कंट्री का नाम हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, और वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन। उसके लिए हम कंट्री का एक कॉमन नाउन है उसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमने सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर एक नाम दे दिया है जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो कि है कंट्री। जस्टिन बीबर इज़ अ सिंगर। तो जितने भी सिंगर्स हैं, यानी कि जस्टिन बीबर भी हो सकता है, सोनू निगम भी हो सकता है, लता मंगेशकर भी हो सकती हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ होगा जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं और वो कहलाएगा सिंगर। पेप्सी इज़ अ सॉफ्ट ड्रिंक। पेप्सी इज़ अ सॉफ्ट ड्रिंक, तो पेप्सी की जगह यहाँ कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है, उसके लिए हम यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कॉमन नाउन रहेगा। दीक्षा इज़ एन ऐप। अब इतने सारे एजुकेशनल ऐप हमारे सामने आते हैं, आए दिन हम मोबाइल पर देखते रहते हैं, जिसमें खान एकेडमी के बारे में है, एक्स्ट्रा मार्क्स के बारे में, अन एकेडमी, विकीपीडिया, कोरा ऐप, टिंकर, कोडिंग फॉर किड्स। सो देयर आर नंबर ऑफ ऐप्स। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐप का नाम आएगा तो हम उसके लिए जो कॉमन वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे वो होगा ऐप। हेयर वी कैन डिफ्रेंशिएट इट मोर ईजिली। प्रॉपर नाउन दे हैव अ नेम, जैसे ऑडी, इंग्लैंड, जस्टिन, पेप्सी, दीक्षा। एंड कॉमन नाउन दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर नेम, जस्ट एज ऑडी इज अ कार, इंग्लैंड इज अ कंट्री, जस्टिन बीबर अ सिंगर, पेप्सी इज अ ड्रिंक एंड दीक्षा इज एन ऐप. Common nouns can further be divided into two parts: countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns, as the word denotes, counting. It means जिनकी गिनती की जा सकती है। तो कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं, उस केस में हम अ,
एन और वन का यूज़ करेंगे। और प्लूरल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम मैनी, अ फ्यू और किसी नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 4। अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, तो उसके साथ हम एन और वन का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे कॉमन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उनके साथ मच, सम और अ लिटिल का यूज़ किया जाता है। सो फर्दर वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर: countable nouns and uncountable nouns. So under the category of countable nouns, we have car, table, book, dog, woman and teacher. So all these words can be counted. So here we can say a car, or we can also say many cars. On the other hand, uncountable nouns: water, salt, art, sugar, oil, music, soil, literature, milk, ink, sand, work. So, with these uncountable nouns, we cannot use a, an, or one. To qualify these uncountable nouns, we have to use much, some, or a little, just as we have to say some water, or much water, or a little water. Now, this is an activity time for you. Match the proper noun with a common noun by drawing a line. आपको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के साथ एक लाइन ड्रॉ करके उसे मैच करना है. दिस इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी एंड यू ऑल कैन डू इट. वेल, योर आंसर्स आर हियर एंड यू ऑल कैन मैच योर आंसर्स. Let's try to understand the concept of collective noun. A collective noun is a name of a number or collection of persons or things taken together, group of animals and spoken of as a whole. कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है यहाँ पर, कलेक्शन. कलेक्शन हियर मीन्स ग्रुप, और ये एक समूह भी हो सकता है. इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स. सो इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग, जिसको हम एक नाम दे देते हैं. उस पूरे के पूरे समूह को एक नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आर्मी. हम आर्मी की बात करेंगे तो जब बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो मिलकर एक आर्मी बनाते हैं. सिमिलरली हर्ड. हर्ड में जब कैटल्स, बहुत सारे कैटल होते हैं, वो मिलकर एक हर्ड बनाते हैं, यानी उनका एक झुंड बनता है. फ्लीट, जब बहुत सारे शिप्स इकट्ठे होंगे तो उनका फ्लीट बनेगा. शिप का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे जहाज, उनका एक जहाजी बेड़ा होता है. बंच, बंच किसी भी चीज़ का हो सकता है. बंच फ्लावर्स का भी होता है, ग्रेप्स का भी होता है, कीज़ का भी होता है, और बंच ऑफ बनानास भी हम कह सकते हैं. पैक, पैक के केस में हम यहाँ पर पैक ऑफ कार्स, पैक ऑफ डॉग्स या पैक ऑफ वुल्व्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अ स्वीट ऑफ रूम्स, जब हम 2 रूम्स का एक हम स्वीट लेते हैं तो हम वहाँ पर स्वीट ऑफ रूम्स का इस्तेमाल करते हैं. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, वर्कर्स, ऑक्सन्स, ये सब मिलकर टीम बनाते हैं. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टीम प्लेयर्स की एक टीम है, वर्कर्स की एक टीम है और ऑक्सन्स की टीम है. अ स्कूल और शॉल ऑफ फिश, आपने ये बहुत ही कॉमनली इसको देखा होगा. कभी स्कूल दिया होता है, कभी शॉल दिया होता है. तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में. जो शॉल ऑफ फिश है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फिश है उनका ग्रुप अभी स्विमिंग नहीं कर रहा है, वो एक जगह पर एक ग्रुप में रुके हुए हैं किसी भी सोशल रीज़न की वजह से. कोई भी उनका आपस में कारण हो सकता है. और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो इट मीन्स फिश का एक ग्रुप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ स्विमिंग करते हुए जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्कूलिंग ऑफ फिश. स्वाम और हाइव ऑफ बीज, वी कैन से जब बहुत सारी बीज इकट्ठी हो जाएंगी तो उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? अ स्वाम और हाइव ऑफ बीज. इन दोनों में से हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं. सिमिलरली अ क्रू ऑफ सेलर्स, जब बहुत सारे नाविक इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी एक टीम बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रू. सिमिलरली बंच, मैंने पहले ही बता दिया था आपको. मॉब और क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है. मॉब जो होती है वो भी भीड़ होती है, लेकिन वो एक्साइटेड क्राउड होती है. गुस्से वाली भीड़ जो होती है उसे हम मॉब कहते हैं. अ फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब है यहाँ पर जब बहुत सारी भेड़ इकट्ठी हो जाएंगी, उनका पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, तो हम उसके लिए फ्लॉक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. देन हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल भी मैंने आप को बताया था. अ लिटर ऑफ पपीज़, तो यहाँ पर जो हम कलेक्टिव नाउन
पपीज़ के ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे वो होगा लिटर, और मिनिस्टर्स के ग्रुप के लिए जो कलेक्टिव नाउन आएगा उसे हम बोलते हैं कैबिनेट। जब बहुत सारे ट्रीज़ होंगे तो उनका एक पूरा का पूरा ग्रुप होगा तो उसे हम बोलेंगे क्लम्प ऑफ ट्रीज़। इसी तरीके से अगर एयरप्लेन्स बहुत सारे एक ही डायरेक्शन में एक साथ जा रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं अ स्क्वाड्रन ऑफ एयरप्लेन्स। सिमिलरली जब बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको मिलाकर हम अपनी एक लाइब्रेरी बनाते हैं, तो दिस इज़ नोन एज अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। एंड अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जब बहुत सारी स्टिक्स इकट्ठी होती है तो मिलकर बनता है एक बंडल। Here we need to remember one thing, collective nouns are used for singular numbers. Collective noun का use हम singular number के लिए करते हैं. If they are used with plural numbers, the word will become common in that case. अगर हम collective noun का use प्लूरल नंबर की तरह करते हैं तो वो वर्ड वहाँ पर कॉमन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल. तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम क्लास वर्ड का यूज़ करते हैं. लेकिन जब अगर हम यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस को दिखा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब बहुत सारी क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी तो यहाँ पर ये जो क्लास वर्ड है ये एक कॉमन नाउन बन जाएगा. सो हेयर वी कैन से classes refers to common noun. So here I have given you some more examples. You can have a close look and try to understand this concept and what kind of collective nouns are given here. Now this is activity for you. आपको collective nouns का concept बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ ब्रैकेट में मैंने कुछ words दिए हैं और आपको इन words को इन fill in the blanks में fill करना है. So you can do it very easily. Just go ahead and test your knowledge. Here I have given you all the answers of activity number 2. You can get your answers here. Now it's time to understand the concept of material noun. Material noun refers to a material or substance out of which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic, etc. Material noun एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. तो इस मटेरियल नाउन में क्या आता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड और प्लास्टिक. हमें एक बात यहाँ पर याद रखनी होगी कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट हियर इज दैट दे आर इन कंक्रीट फॉर्म. कंक्रीट मतलब वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं. दे आर समथिंग विच कैन बी टच्ड, स्मेल्ड, सीन, हर्ड और टेस्टेड. यानी कि इन्हें हम टच कर सकते हैं, इन्हें स्मेल कर सकते हैं, इन्हें देखा जा सकता है, हम इन्हें सुन भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेयर डू वी गेट द रॉ मटेरियल. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है. तो रॉ मटेरियल को पाने के लिए हमारे पास कुछ प्राइमरी सोर्स हैं और उन प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आता है, एनिमल्स, प्लांट्स, नेचर और मैन मेड मटेरियल. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल्स से हमें कौन सा मटेरियल मिलता है. मिल्क, सिल्क, लेदर, हनी, वूल, एग, मीट, ये सभी के सभी मटेरियल हमें एनिमल्स से मिलते हैं. एंड वी गेट raw material from plants also, such as cotton, coffee, wood, food, oil, jute, medicine, tea, rubber, perfume, etc. And now there are some things that we get from nature also. There are many things basically: air, water, gold, silver, iron, copper, sand, coal, rock, sunlight, rain, earth, dew, salt, etc. Then there are some things which are made by man, which are artificials, like they are not obtained by nature, plants or animals, such as acid, alcohol, asphalt, brick, cement, butter, ghee, cheese, paraffin, cloth, enamel, etc. And these things are later used by humans to create various things of necessity. और बाद में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इंसान अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता है. Here we need to remember, in case of material nouns,
कि हम आर्टिकल अ, एन और द का यूज़ मटेरियल नाउन्स के साथ नहीं करते हैं जब वो अनकाउंटेबल की तरह यूज़ होते हैं। जैसे आई यूज़ हनी विद लेमन फॉर गुड हेल्थ। सो हेयर यू कैन सी हनी, मैंने हनी से पहले अ एन कुछ भी नहीं लगाया है। एड सम मोर सॉल्ट टू द डिश, सॉल्ट के पहले भी यहाँ पर अ और एन में से कुछ भी नहीं लगा है। वाटर फ्लशेज आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सो हेयर यू कैन सी वाटर से पहले कुछ भी नहीं लगा है, द नहीं लगा है, ए नहीं लगा है, एन नहीं लगा है। Article A and may be used with material nouns when they are countable in different way, not directly. तो यहाँ पर हम कभी कभी material noun के साथ अ और एन भी लगा सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में ही ये बताया गया था कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन कुछ अलग कंडीशन में हम material noun के साथ ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी, टी। तो यहाँ पर हमने कॉफ़ी और टी के साथ में अ कप लगाकर, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको लगाने का एक अलग तरीका भी ढूंढ सकते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये काउंटेबल की तरह काम कर रहे हैं। अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी और टी, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, ऑयल, वाटर, अ ग्लास ऑफ बियर, जूस, वाटर, वाइन, a grain of rice, sand, truth. Or we can say, I purchased a gold ring. So here you can see I'm using a gold ring, and this gold is being followed by a noun ring. So I'm talking here about one gold ring. I want a piece of paper. So here in this way we can use it. Now use many, some, a lot of and a piece of before the material noun. और मटेरियल नाउन से पहले हम इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, पुट सम मोर वुड ऑन द फायर, माई फादर बॉट अ पाउंड ऑफ टी। So here I have given you pictures of material noun. Here we can see toothpaste, jewelry, money, rain, glass, wheat, gold and coal, etc. Here we can see material nouns. Input is termed as material nouns. So here plastic is input and we get chair in output. As a result, we are getting here chair. Again, here is an activity for you, and this time you have to underline all the material nouns given in the sentence. Now we have abstract noun. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses, that is taste, touch, sight, hearing or smelling. Abstract noun एक ऐसा noun होता है जिसे हम five senses का use करके भी perceive नहीं कर सकते हैं. It means it is name of a quality, action और state. तो ये एक हमारी क्वालिटी को दिखाता है, हमारी एक्शन को दिखाता है या हमारी स्टेट को, हमारी अवस्था को दिखाता है। फाइव सेंसेस में अगर हम बात करें तो ना तो हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना ही उसे सुन सकते हैं और ना ही स्मेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर विजडम और स्ट्रेंथ की कोई शक्ल नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं। विजडम का मतलब है बुद्धि और स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। तो विजडम और स्ट्रेंथ यहाँ पर दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो आई हैव गिवन यू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड हियर it has been given under various categories. Category here is feelings, जो हमारी फीलिंग्स को दिखाए। कैसे नाउन है वो? एंजाइटी, फियर, प्लेजर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये दिखा रहे हैं हमारी फीलिंग्स को। इसमें जॉय, हैप्पीनेस ये भी हम ऐड कर सकते हैं। स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की अवस्था है, कैसी दशा है, कैसी स्टेट है? फ्रीडम, केओस, मिजरी। ठीक है, तो हम वहाँ पे बात करते हैं फ्रीडम की, अव्यवस्था की, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। इमोशंस में आता है एंगर, शॉक, सोरो, ये सब चीज़ें हमारे इमोशंस में आती हैं, जिसमें हम गुस्से की बात करेंगे, हम किसी शौक की बात करेंगे या दुख की बात करेंगे। क्वालिटीज़ में हम जब बात करेंगे तो उसमें करेज, ऑनेस्टी,
पेशेंस, इंटेलिजेंस, ये सब भी आता है। हमारा साहस, हमारी ईमानदारी, हमारा धैर्य। कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो चैरिटी, कंफर्ट, डिसीट, हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। और मोमेंट्स में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, जैसे बर्थडे, मैरिज, डेथ, तो ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखा रहे हैं। Here I have given you a simple trick to identify abstract noun. So here I have given you some syllables. All these are the suffixes, and after adding these suffixes to the end of a word, we can get abstract noun. So here ry, it must be added at the end of a word. ty, ity, ance, ence, ancy, ency, NESS, HOOD, SHIP, AGE, MENT, SION, TION। अगर हम इन सभी सफिक्सेस को किसी भी वर्ड के आखिर में लगाते हैं तो उसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेवरी, पॉवर्टी, लास्ट में TY आ रहा है, ब्रेवरी में RY आ रहा है, पब्लिसिटी में ITY आ रहा है, अटेंडेंस में ANCE आ रहा है, रेजिडेंस में ENCE है, वैकेंसी, करेंसी, क्लीनलीनेस, चाइल्डहुड, स्कॉलरशिप, शॉर्टेज, जजमेंट, एप्लीकेशन, सुपरविजन, ये सारे के सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हेयर आई हैव गिवन यू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर कुछ अलग से भी आपको दिखाई देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब में यही वर्ड्स आपको नज़र आए, लेकिन मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको ये वर्ड्स, यहाँ पर जितने भी सफिक्सेस जो मैंने आपको बताए हैं वो देखने को मिलेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। So here we have three ways which can help us to form abstract noun. So abstract noun are formed by using three parts of speech, just as verb, adjectives, common nouns. So here we can see an example of a verb. If we write obey here, obey is a verb, obedience can be formed. Similarly, if we use adjective kind, using this kind adjective, we can make an abstract noun, that is kindness. And similarly, when we use a common noun like child, we can make here abstract noun, that is childhood. And all these things will really be very helpful for us for word formation. Well, we can say that we have compound noun also. And how can we make this compound noun? A noun made up of two or more existing words. For example, cat food, playground. So here compound elements have been given, and on the other hand we have been given many examples. So what are the compound elements here? कौन कौन से elements का use करके हम compound noun बना सकते हैं? Noun plus noun. So here bed is a noun and room is also a noun. And after joining these two words, we make here bedroom. Similarly, water tank, motorcycle, printer cartridge. Then noun plus verb. Now adding these two parts of speech, we can make compound noun, that is rainfall. Rain is a noun and fall is a verb. Haircut, train spotting. Then we have another compound element, that is noun plus adverb. And now adding these two parts of speech, we can make hanger on, passerby. Now there is another compound element, that is verb plus noun, and using this element we can make washing machine. Washing is a verb and machine is a noun, driving lessons and swimming pool. And we cannot separate these words because they are compound nouns. And finally, I have given you last exercise, and here what you have to do, you have to find the nouns given in the following sentences and also identify their kinds. So this is basically mix exercise. Here you have to find out proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So this is the end of this video. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग ग्रामर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।